کہ تخت پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے نکلنے لگا ہے۔ ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد نمبر گیم تبدیل ہو گئی۔ تحریک انصاف کی عددی اعتبار سے پہلی پوزیشن ہے، 15 نئی نشستوں کے بعد تعداد 178 ہو گئی ہے۔ اتحادی کاف لیگ کی 10 سیٹیں شامل ہیں، ٹوٹل 188 ہو گئی۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تخت پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے نکلنے لگا ہے۔ ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد اب نمبرز گیم تبدیل ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف کی عددی اعتبار سے پہلی پوزیشن ہے، 15 نئی نشستوں کے لیے 178 ہو گئی ہیں ان کی نشستیں، جبکہ اتحادی کاف لیگ کی 10 سیٹیں بھی شامل ہیں، ٹوٹل 188 ہو گئی۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں۔ پی ٹی آئی کو پنجاب کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار اقتدار سے باہر ہو کر چند روز بعد ہی عوامی طاقت کے ذریعے اقتدار میں واپس آنے کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں واضح کامیابی کے بعد تحریک انصاف کے پاس حکومت کی تشکیل کے لیے ممبر کی تعداد پوری ہو گئی۔ ضمنی انتخابات کا تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد 178، اتحادی مسلم لیگ کاف کے اراکین کی تعداد 10 ہے۔ یوں کل ملا کر تعداد 188 تک جا پہنچی، جبکہ قائد ایوان کے منتخب ہونے کے لیے 186 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار چودھری پرویز الہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ممبران کی تعداد 168، جبکہ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے 7 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ ذرائع کے مطابق رائے حق پارٹی کے رکن اسمبلی اور آزاد اراکین اسمبلی نے نون لیگ کی حمایت کے حوالے سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے، جس کا حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی تاریخی فتح، 20 میں سے 15 نشستوں پر کامیابی۔ فیصل آباد ڈویژن کی تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتی۔ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ عدالتی احکامات کے مطابق 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے گا۔ نون لیگ کے حمزہ شہباز شریف اور تحریک انصاف کی جانب سے پرویز الہی امیدوار ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ پیپلستان میں فیصل آباد 1 سے تحریک انصاف اور نون لیگ کے علاوہ 10 امیدوار میدان میں تھے۔ اس حلقے میں تحریک انصاف کے علی افضل شاہی نے 67,022 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ نون لیگ اجمل چیمہ 54,266 ووٹ لے سکے۔ تحریک لبیک کے نوید شفیع نے 7,696 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ علی افضل شاہی نے اپنے فتح کو والدین اور اہل علاقہ کے نام کرتے ہوئے کہا، آج نظریے کی جیت ہوئی ہے اور لوٹوں کی سیاست دفن ہو گئی۔ کہ یہ فتح اس حلقے کے عوام کے نام ہے، یہ جو دوست ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے نام ہے۔ انہوں نے بھرپور محنت کی، ہم نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ فائٹ پٹ کی اور الحمدللہ ہماری محنت کا اللہ کی ذات نے آج ہمیں صلہ دیا۔ پی پی 125 جھنگ کے 2 میدان بھی تحریک انصاف کے نام رہے۔ پی ٹی آئی کے میاں محمد اعظم چیلا نے 82,297 ووٹوں کے ساتھ تاریخی فتح حاصل کی۔ میاں محمد اعظم نے نون لیگ کے امیدوار کے مقابلے میں 30,020 ووٹ کی لیڈ سے یہ سیٹ جیتی۔ نون لیگ کے فیصل حیات جبوانہ 52,277 ووٹ حاصل کر سکے۔ حلقے میں مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ 52.84% رہا۔ جیت کی خوشی میں کارکنان نے اعظم چیلا کے ڈیرے پر جشن منایا۔ یہ اللہ کے کرم، اللہ کے فضل، اللہ کے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، اس غریب عوام کے صدقے اور عمران خان کے وین کی وجہ سے یہ ہم نے میدان مارا ہے۔ اللہ کے کرم، اللہ کے فضل۔ میرے والد صاحب کی بھی 23,000 کی لیڈ تھی۔ پی پی 127 جھنگ کے 4 سے تحریک انصاف کے مہر محمد نواز 71,648 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ نون لیگ کے مہر محمد اسلم 47,413 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ حلقے میں ڈالے گئے ووٹوں کی شرح 53.71% رہی۔ اس حلقے میں تحریک لبیک کے محمد عثمان صرف 2,843 ووٹ لے سکے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں تاریخی فتح پر کھلاڑیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم، آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ پی پی 127 کے کارکنان جشن منانے نواز بھروانہ کے گھر پہنچ گئے۔ 9 منتخب ایم پی اے نے فتح کو حلقہ کی عوام کی جیت قرار دیا ہے۔ جنگ کے ضلعی سیکریٹریٹ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، پارٹی ترانوں پر رقص کیا گیا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ ضلعی سیکریٹریٹ سے نواز بھروانہ کے ڈیرے تک موٹر سائیکل ریلی بھی نکالی گئی۔ کمالیہ میں بھی کھلاڑیوں نے جیت کا جشن منایا۔ کارکنان کے عمران خان کے حق میں نعرے۔ فیصل آباد ریجن میں تاجران ریلوے روڈ اور پی ٹی آئی ٹریڈر زونگ نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر ایوب کالونی میں تقریب ہوئی۔ پی پی 97 میں کامیابی پر کارکنان کی ایک دوسرے کو مبارکباد۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب کے ضمنی انتخابات میں تاریخی فتح پر کھلاڑیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں، جبکہ آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔
PP 127 के कारकुनान जश्न मनाने नवाज भरवाना के घर पहुंच गए। 9 मुंतखब MPA ने फतह को हल्का की अवाम की जीत करार दिया। जंग के जिले सेक्रेटेरिएट में तकरीब का एहतमाम किया गया। पार्टी तरानों पर रक्स और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नजरियाती कारकुनान को टिकट ना मिलने के बायस हमें शिकस्त हुई है। साबिक डेप्यूटी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट की सिटी 41 से गुफ्तगू, कहा कारकुनान को नजरअंदाज करने का खामियाजा पार्टी ने भुगता है। आम इंतखाबात में अगर ऐसे ही किया गया तो फिर नून लीग की हुकूमत नहीं बनेगी। देखिए, बात यह है कि नून लीग का वोट अपनी जगह कायम है। ये नहीं है कि नून लीग का वोट कायम नहीं है। सिर्फ ये हुआ कि हमने जो लोटे, जिनको इमरान ने लोटा कहता था, वो दूसरी जमात से हमारी तरफ आए थे, और हमारी तरफ जब आए हैं तो ऐसा एक जो हम उनको सिलेक्टेड कहते थे वो हमें इम्पोर्टेड कहने लग गए। बात यह है कि जब हमारे कैंडिडेट और वर्करों को टिकटें दी जाएंगी तो इंशाल्लाह अब भी भरपूर तरीके से नून लीग जीतेगी, क्योंकि इमरान को 4 साल लोगों ने देख लिया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती है कि उसका जो गन था इमरान खान का इनके पल्ले पड़ गया। बदलती मुल्की सूरत हाल, डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में रिकॉर्ड 4 रुपये 25 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 215 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 217 रुपये पर ट्रेड हुआ। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में तूफान की तेजी से इजाफा हो रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बदलती मुल्की सूरत हाल के हवाले से कि डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक की बात की जाए तो इंटरबैंक में रिकॉर्ड इजाफे के साथ डॉलर 4 रुपये 25 पैसे महंगा हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार 215 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 217 रुपये पर ट्रेड हुआ। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में तूफान की तेजी से इजाफा हो रहा है। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है। घर और घी और तेल की कीमतों में 30 रुपये तक कमी। दर्जा दोम के बाद दर्जा अव्वल घी और ऑयल भी सस्ता। दर्जा अव्वल घी 530 रुपये किलो पर आ गया। 5 किलो के पैक की कीमत 2800 से कम होकर 2650 रुपये पर आ गई। महंगाई से तंग आए अवाम के लिए अच्छी खबर है कि ताजरों ने दर्जा अव्वल का घी सस्ता कर दिया। दर्जा अव्वल के घी पर शहरियों को बड़ा रिलीफ फराहम किया गया। दर्जा अव्वल का 5 किलो का पैकेट 150 रुपये सस्ता कर दिया गया। दर्जा अव्वल 5 किलो घी और ऑयल का पैक 2800 से कम होकर 2650 रुपये का हो गया। फी किलो घी और ऑयल की कीमतों में 30 रुपये की कमी आ गई। जिस तरह सानू हुकूमत कर दी, सानू तामन कर रही, असी उसी तरह तामन कर रहे। तेजी का इम्कान कोई नहीं है। हर बंदा परेशान होया खड़ा है। इस वास्ते हुण रेट डाउन हो रहे, हुण सही हो रहे कम। घी की कीमतों में कमी पर शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया। शहरियों ने मजीद रिलीफ फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया है। भाईजान एक कीमत जड़ी 30 रुपये घटाई ने, ये थोड़ी घटाई ने, इससे ज्यादा घटाए। कोई गरीब आदमी रोटी खाने जो हो जाए। एक मजदूर आदमी 800 रुपया कमांदा है, 600 किलो घी लाएगा, पीछे वो बच्चे ने की देगा, की लाएगा। गरीब आदमी है, थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो घी आटे में चला जाता है, इसलिए आपकी मेहरबानी होगी। महंगाई से तंग आई अवाम को ताजरों की जानिब से घी और ऑयल की कीमतों में कमी खुशाइंद बात है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। ताज कॉलोनी, मिल्लत रियाज, शाही चौक, मंसूराबाद, डी ग्राउंड, डाइवो रोड, मंडी क्वार्टर समेत दीगर स्टोर्स पर अशिया ज़रूरियात दस्तयाब नहीं है। शहरी अशिया की तलाश में यूटिलिटी स्टोर्स आने वाले मायूस लौटने लगे हैं। अशिया की फराहमी बहाल, शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। हैदराबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया की किल्लत बरकरार है। ताज कॉलोनी, मिल्लत रोड, रियाज शाह चौक, मंसूराबाद, डी ग्राउंड, डाइवर रोड, मंडी क्वार्टर, अमीन टाउन, मानावाला और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, ऑयल, आटा और दालों की शदीद किल्लत है। शहरी कहते हैं कभी अशिया मिलती हैं तो कभी नहीं मिलती। सुबह का घर से निकला हूँ, पहले एक स्टोर पे गया हूँ, वहाँ से भी नहीं मिला। अभी यहाँ पे भी आया हूँ, मजीद लाइनों में लगना पड़ता है, काफ़ी देर खड़े होना पड़ता है। बाद में अंदर जाकर पता चलता है कि यहाँ पे तो जी आटा नहीं है, चीनी नहीं है, जो सामान पड़ा वो ले ले। अशिया ज़रूरिया ना मिलने की वजह से शहरी हुकूमत से नाला नजर आने लगे। कहते हैं जिस भी यूटिलिटी स्टोर्स पर जाते हैं चीजें नहीं मिलती। रिलीफ पैकेज आवाम तक नहीं पहुँच रहा। यूटिलिटी स्टोर से बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है। ये रिलीफ पैकेज का क्या फायदा? अगर देना है तो खुल को आवाम को दें। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अशिया की किल्लत पर काबू पाए ताकि सस्ती अशिया खरीद सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की किल्लत की बड़ी वजह सामने आ गई। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन इंतजामिया चिन्योट फ्लोर मिल की 50 लाख रुपए की नादहिंदा निकली।
रकूम की अदायगी न होने पर फ्लोर मिल ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को आटे की सप्लाई बंद कर दी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता एक माह से आटा दस्तयाब ही नहीं है। तकरीबन 6-7 दुकानों के स्टोर से गए, आटा कोई नहीं है जी। वो कह रहे जी स्टोर वाले आटे कोई नहीं आ रहे, तो स्टोर वाले ने उत्ते फ्लोर मिलर ने पैसे कोई नहीं दिते, तो आटा कोई नहीं भेजते पे। लिहाजा मेहरबानी की जाए तो फ्लोर मिल वाले ने पैसे देन तो आटा भेजन। असं गरीब आदमी है, शामी मेहनत मजदूरी करके आने, आटा लभदे, आटा कोई कार वाले तो 600 रुपए की 500 रुपए की थाली आटा ही दे रहे हैं। अब आपको बताएं कि हुकूमत और पंप मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ऑल फैसलाबाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई है। तमाम मुतालबात मंजूर करते मुकर्ररा सिफारिश से भी 1% ज़ायद देने के ऐलान पर पंप मालिकान खुश हैं। पेट्रोल पंप मालिकान के मुतालबात मान लिए गए। अब अवाम को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पंप बंद नहीं होंगे। फैसलाबाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई। मुतालबात ना मानने पर आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया था। पंप मालिकान का कहना है कि मुतालबात थे कि परसेंटेज बढ़ाई जाए। ओगरा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री समेत हुकूमती सतह पर फैसला हुआ है। उम्मीद है कि फैसले का एहतराम होगा। चेयरमैन फैसलाबाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन राना फैज ने सिटी 41 से गुफ्तगू की। इनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से 1 अगस्त का वक्त दिया गया है और इस पर अमल होना चाहिए। हम फॉर द टाइम बीइंग अभी वो हमें 7 रुपए फिक्स कर रहे हैं, उसमें डीजल और पेट्रोल दोनों का 7 रुपए फिक्स किया है। उसके बाद अब ये तय हुआ कि हमने उसको मौखर कर दिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगी 1 अगस्त से। अगर खुदा न खास्ता अगर वो हमें नहीं करते तो फिर हम जाहिर है कि अपनी पूरी हायर अथॉरिटीज़ जो हायर कमांड है उनके मुताबिक हम फिर चल पड़ेंगे जी स्ट्राइक की तरफ। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ओहदेदारान का कहना है कि मुकर्रर तारीख तक वादों पर अमल ना हुआ तो हड़ताल की कॉल देंगे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर का बड़ा मंसूबा। शहरी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के मंसूबे की तैयारी का आगाज। वर्ल्ड बैंक के साथ मंसूबे तय पा गए हैं। $150 मिलियन की लागत से 5 सालों में शहरी रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने पंजाब में शहरी अराजी के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के मंसूबे की मंजूरी दे दी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने अपने गुज़िश्ता तजर्बा और तकनीकी सलाहियत की रोशनी में शहरी अराजी के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन मंसूबे की तैयारी का आगाज किया। पलरा की जानिब से इब्तदाई दस्तावेजात की तैयारी कर ली गई है। मंसूबे के नफाज के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मातहत एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट तश्कील दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मंसूबे का दौरानिया 5 साल मुकर्रर किया गया है। दही अराजी के रिकॉर्ड की तरह शहरी अराजी के रिकॉर्ड को भी मुतल्लिका इदारों से इकट्ठा किया जाएगा। कंप्यूटराइज और सैटेलाइट नक्शा जात तैयार किए जाएंगे। पंजाब में गुज़िश्ता दही अराजी का रिकॉर्ड पहले ही कंप्यूटराइज किया जा चुका है। ताहम इस मंसूबे के तहत शहरी और देहाती कंप्यूटराइज रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड जियोग्राफी नक्शा जात से मुंसलिक किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत एक नया इस्लाहाती लैंड रिकॉर्ड सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। पूरे पंजाब में तमाम इदारों में राइज किया जाएगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद में स्टाम्प फरोशों की मुश्किलात खत्म ना हो सकी। स्टाम्प का ऑनलाइन सिस्टम फिर से बैठ गया है। शहरी को मुश्किलात का सामना है। डेकिंग रुक गई, मैनुअल सिस्टम से इजरा भी रुक चुका है। ये जो इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया है इसमें बहुत ही खराबी चल रही है। अवाम बहुत ज़लीलो ख्वार हो रही है, स्टाम्प नहीं मिल रहे अवाम को, ठीक है ना। तो अगर इन्होंने ऑनलाइन किया है तो उसको बेहतर तरीके से चलाएं ताकि अवाम को कोई सहूलियात मिल सके। लिंक डाउन होने से पब्लिक को और दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। बाज़ औक़ात तो एक दिन पूरा दिन ही स्टाम्प नहीं मिलते, और अगर स्टाम्प मिलते भी हैं तो कुछ लोग इनका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। लोगों का जो स्टाम्प है वो 200 का दे रहे हैं। फेस्को की मुजरिमाना गफलत कहें या फिर लापरवाही, नए पोल्स बस नाम के ही रह गए हैं। शहर की अहम शाहराह जुमरा रोड पर पोल्स खस्ता हाली के बायस ज़मीन बोस होने लगे हैं। फैसलाबाद की अहम शाहराह शेखुपुरा रोड पर खस्ता हाल पोल नखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। फेस्को पुराने और बोसीदा पोल्स को तब्दील करने में सुस्ती का शिकार। टेढ़े और पुराने पोल्स के मामले पर फेस्को हुकाम ने चुप साध ली है। शहरियों का कहना है कि शेखुपुरा रोड के बेशतर पोल्स पुराने और बोसीदा हो चुके हैं जो किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकते हैं। फेस्को होश के नाखून ले और पोल्स तब्दील करे। ये खंबे काफ़ी खस्ता हालत हो गए, एक ही टाइम भी ये गिर सकते हैं, इससे जानी माली नुकसान हो सकता है। लिहाजा वापडा वालों से गुजारिश है कि इसे जितनी जल्दी हो सके इसे चेंज किया जाए। शेखुपुरा रोड के खस्ता हाल
पोल्स फेस्को की लापरवाही का नतीजा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उवैस अली, फैसलाबाद। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। जामिया चिश्तिया चौक में अरसा दराज से रोड की मुरम्मत ना हो सकी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। जी मैम, इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। यहाँ पर बहुत सारे हादसा हो रहे हैं। सड़क बहुत ज़्यादा टूटी है। यहाँ से वहाँ आगे डिंगरू नहर तक यहाँ सड़क का बिल्कुल बेहाल है और मोटरसाइकिल भी जो नहीं चलते हैं और गाड़ियों को बहुत सारे यहाँ पे हादसा पेश आ चुके हैं और लोगों की कई जाने भी जा चुकी हैं। और जबकि सिंगल रोड के ऊपर लोग मुसाफिर करते हैं, वो आने वाली गाड़ियों के साथ कई बार टकराव होकर लोगों की जानें गई हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद एयरपोर्ट पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ASF का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हरासा करने का मामला है। ASF चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सिविल एविएशन के अमूर में मुदाखलत की है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर अलाफ सरान के दरमियान तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। ASF चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सिविल एविएशन के अमूर में मुदाखलत की रिपोर्ट कराची अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ASF चीफ ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हरासा किया। चीफ सिक्योरिटी ASF बगैर इजाजत ATC रूम में गए, बगैर इजाजत दाखिला आलमी सिविल एविएशन रूल्स की खिलाफ वर्जी की। APM फैसलाबाद एयरपोर्ट की तरफ से DG सिविल एविएशन को रिपोर्ट भिजवा दी गई। मौसम गर्मा की तातीलात में कोई तोसी नहीं होगी। स्कूल खोलने में चंद रोज बाकी हैं। तलबा ने स्कूल जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान को स्कूल खुलने से पहले सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात फंक्शनल रखने का टास्क दे दिया है। मौसम गर्मा की तातीलात में कोई तोसी नहीं होगी। स्कूल खुलने में चंद रोज बाकी, तलबा ने स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर दी। महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान को स्कूल खोलने से पहले सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात फंक्शनल रखने का टास्क भी दे दिया। महकमा तालीम पंजाब की तरफ से स्कूल्स में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान किया गया था, जबकि छुट्टियों में मजीद 2 हफ्तों की तोसी की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिस पर महकमा तालीम ने छुट्टियों में तोसी न करने का ऐलान करते हुए स्कूल सरबराहान को 1 अगस्त से स्कूल खोलने की हिदायत दी है। छुट्टियों में चंद रोज बाकी रह गए हैं। महकमा तालीम के मुताबिक तमाम स्कूल्स में अगले तालीमी सेशन के लिए क्लासेस का बाकायदा आगाज 1 अगस्त से किया जाएगा। प्रिंसिपल क्रीसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल मियां मोहम्मद सईद का कहना था कि अगला सेशन 1 अगस्त से मार्च तक 8 माह का होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन 1 अगस्त से बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें ताकि उनका सिलेबस बर वक्त मुकम्मल करवाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अगले साल से नया एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। FBR मौशी बहरान का शिकार है। रवा माली साल के दौरान नई गाड़ियों की खरीदारी, मुलाजमीन की भर्तियों पर पाबंदी, अफसरान के गैर मुल्की दौरों और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाजमीन की सरकारी रिहाइश गाहों के यूटिलिटीज बिल्स में 10% कमी होगी। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद हादसात की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक हो गया। हादसात का सबब बनने वाली खतरनाक ड्राइविंग, गैर कानूनी बॉडी वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 15 रोज में 5000 से ज्यादा अफराद के चालान हुए, 9 ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। CTO तनवीर अहमद मलिक कहते हैं गैर कानूनी बॉडी के साथ कमर्शियल गाड़ी चलाने वाले 11 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। जैसे आपने बताया कि स्पेसिफिक जो मेजर वायलेशंस है उसके ऊपर 5000 से ज़्यादा अफराद के चलान किए गए। उसके साथ साथ 9 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो मुअत्तल और 11 से ज़्यादा FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं। और मकसद सिर्फ एक ही है कि सड़कों पे वायलेशन को रोका जाए और उसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ जो है वो इन्फोर्समेंट भरपूर अंदाज में की जा रही है। यहाँ आपको अपडेट करें कि पहली बीवी की इजाज़त के बगैर साली से शादी करने का मामला है। मुबैना बीवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त के खिलाफ केस, लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज न करने पर CPO फैसलाबाद को कल तलब कर लिया। फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त देने के बावजूद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, अदालत का इस्तफसार था, जिस पर जस्टिस मिस आलिया नीलम ने बिलाल हसन की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पहली बीवी की इजाज़त के बगैर साली से शादी करने का मामला सामने आया है। मुबैना बीवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त के खिलाफ केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज न करने पर CPO फैसलाबाद को कल तलब कर लिया। अब आपको बताएं कि DC फैसलाबाद सुहेल अशरफ को DG FDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। रिजवान नज़ीर से DG FDA का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि DC फैसलाबाद सुहेल अशरफ को अब DG FDA का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है, जबकि रिजवान नज़ीर से DG FDA का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगी मुतहर्रिक हो गया। डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद किया गया।
اس موقع پر محکمہ ہیلتھ، ایجوکیشن، اوقاف، ریسکیو سمیت متعدد اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کا کہنا تھا کہ ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہے، ہر محکمہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد میں ہوا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ یوسف، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر PHA عبداللہ چیمہ نے شرکت کی۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان، چیئرمین پرائیویٹ اسکول الائنس صداقت حسین لودھی، ریسکیو فیصل آباد سے فیصل منیر سمیت محکمہ ہیلتھ، فوڈ اتھارٹی، اوقاف، ٹاؤن میونسپل کمیٹی، FDA سمیت متعدد اداروں کے نمائندگان نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی علماء کونسل پاکستان کے زیر اہتمام ختم نبوت اسلامک ریسرچ سینٹر میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ فیصل آباد ختم نبوت اسلامک ریسرچ سینٹر میں مرکزی علماء کونسل پاکستان کے زیر اہتمام شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کے سرپرستی چیئرمین پاکستان علماء کونسل زاہد محمود قاسمی نے کی ہے۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والی 40 سالہ آمنہ جھنگ سے مل گئی، دربدر کی ٹھوکریں کھا کر دارالامان پہنچی، عدالت نے بھائی کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ کراچی کی آمنہ اپنوں سے بچھڑی تو جنگ آن پہنچی۔ ذہنی توازن کھونے کے بعد آمنہ گھر سے اکیلے ہی دربدر کی ٹھوکریں کھاتی جنگ کے دارالامان میں پناہ گزیر ہوئی۔ آمنہ کو عدالت کے حکم پر دارالامان میں رہائش دی گئی اور اس کا خیال رکھا گیا۔ آج الحمدللہ ایک جو خاتون ہے اس کو ہم اس کے ورثہ کے حوالے کریں اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا 10 سال کا بچہ ہے، وہ اس کو یاد کر کے روتی تھی۔ گھریلو ناچاکی کے باعث آمنہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی، جس کے بعد اسے اپنے گھر کا پتہ نہیں چلتا، وہ بھولے بھٹکے کہیں بھی چلی جاتی ہے۔ 2 ماہ بعد اپنوں سے مل کر آمنہ خوشی سے آبدیدہ ہو گئی۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔ میڈم جی کی وجہ سے ہمارے بہت مہربانی، ہمارے بھائی جان لوگ کو ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ قمر سلطان نے آمنہ کو بھائی کے حوالے کیا۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، City 41 جنگ۔ دارالامان خواتین کی پناہ گاہ، لیکن یہاں ایک ایسی لڑکی بھی مقیم ہے جو بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ سننے اور بولنے کی صلاحیت سے قاصر، ذہنی توازن درست نہ ہونے والی لڑکی دارالامان کی پناہ گاہ میں تحفظ لیے ہوئے ہے۔ City 41 کی مدد سے اس کے لواحقین اسے پہچان کر گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ دارالامان صوفیہ رضوان کہتی ہیں، سمندری کی عدالت نے لڑکی کو گونگی بہری لوارث ہونے اور اس کے لواحقین کی کوئی خبر نہیں، جس کی وجہ سے دارالامان بھجوا دیا ہے۔ لڑکی اب دارالامان میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ بچی جس کا یہ ایشو ہے کہ وہ بولتی بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتی اور ذہنی طور پہ بھی لگتا ہے جیسے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تقریباً 2 ماہ سے دارالامان میں ہے۔ سمندری کی کورٹ سے یہ یہاں پہ آئی تھی، پولیس والوں کو کہیں سے ایسے ہی وہ وارث ملی۔ متاثرہ لڑکی 2 ماہ سے دارالامان میں مقیم ہے، مگر اس کے لواحقین کا کچھ معلوم نہیں۔ خبر کو دیکھنے والا کوئی بھی شہری جو اس کی شناخت کر سکے یا اس کے لواحقین کو جانتا ہو، انہیں اطلاع کرے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو لے کے جائیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فضا لیاقت، فیصل آباد۔